So guys, welcome to my channel AK Mechanical Lecture. Today I have brought a new updates regarding PhD admission in NIT. Before starting, I request you all please like, share and subscribe my channel. So this is the information browser of admission to PhD program academic session 2020-21 winter session of NIT Sikkim. So here you can see that there are various programs in engineering on which you can apply for PhD, that is computer science, electrical and electronics communication, mechanical. And in the science and humanity department you can apply for chemistry, mathematics, physics and English. There is no interdisciplinary subjects on which you can apply. So there are two categories. First one is full-time research fellow and second one part-time research scholar. In full-time research fellow, you can get the fellowship as per standard set by Government of India, Ministry of Human Resource, and in full-time research fellow you have to stay for up to 5 stay up to 5 year or up to completion of your PhD. There you have to work also at least 8 hours per week towards duty, including tutorial or laboratory classwork or laboratory development, etc. You can get the teaching or research assistantship, that is currently 31,000 for starting 2 year and last 3 year 35,000. And for part-time research scholar, here only those people can apply who are working in any university or institute or any R&D organization in India or abroad. For full-time means candidate working in government college or institution, R&D organization in India or abroad which are well equipped with necessary research and laboratory facility and interested in collaborative research work with NIT Sikkim or faculty members working at NIT Sikkim may be considered for admission to PhD program. मीन्स यहाँ कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं? गवर्नमेंट कॉलेज में कोई वर्क कर रहा हो या इंस्टीट्यूशन या R&D ऑर्गेनाइजेशन जो वेल इक्विप्ड भी हो वहाँ, ताकि वहाँ पे रिसर्च वर्क जो PhD कैंडिडेट्स है वो कैरी आउट कर सकें, और कुछ फैकल्टी मेंबर्स जो NIT सिक्किम में वर्क कर रहे हैं और वो PhD करना चाहते हैं तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे. आफ्टर एडमिशन कैंडिडेट मस्ट फुलफिल 1 सेमेस्टर ऑफ रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट एट द इंस्टीट्यूट. एटलीस्ट एक सेमेस्टर जो है आपको NIT सिक्किम में रह के अपना कोर्स वर्क कम्प्लीट करना है. That is up to 6 months at NIT Sikkim to complete their necessary coursework. The requirement of the institute supervisor is mandatory in this category, and the external supervisor from his or her institute or R&D organization is optional. Means you can also take the help of an external supervisor as per your convenience, and one supervisor is allotted by the institute, that is any faculty members or professors of NIT Sikkim, and subjected to approval of SPGB or equivalent committee. Candidate who wish to apply under this category are required to route their application through their organization, clearly stating that their organization or institute are equipped with necessary research and library facility. The candidate is in employment with a sponsoring organization at the time of admission or enrollment, and candidate must stay 6 months at NIT Sikkim to complete his or her necessary coursework. एलिजिबिलिटी अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें है. तो फर्स्ट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इफ़ यू हैव मास्टर बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स और 6.5 CGPA इन BTech एंड MTech, दैट इज बेसिक क्राइटेरिया फॉर इंजीनियरिंग. और इफ़ एनी बैचलर degree candidate completed his bachelor's from IIT or NIT or IIIT or other centrally funded technical institution with minimum 85% मार्क्स और 9 CGPA, ये दोनों आपका अप्लाई कर सकते हैं. और बेसिक साइंस के लिए मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस विथ मिनिमम 55% मार्क्स और 6 CGPA. इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होना चाहिए विथ 55% मार्क्स और 6 CGPA. SC/ST कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन है मार्क्स में. और एडिशनल आपका क्या है और चाहिए,
तो फुल टाइम जो आपका फुल टाइम में जो पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए गेट और नेट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है प्रिफरेबल है। यदि आपके पास एम टेक है और साथ में गेट है तो आप प्रीफर्ड होगे अदर कैंडिडेट के कम ये में, मतलब मीन्स इफ़ टू कैंडिडेट्स आर देयर, वन इज विथ गेट क्वालिफिकेशन एंड अनदर वन विदाउट गेट, देन विद गेट क्वालिफिकेशन इज प्रीफर्ड। और यदि बीटेक कैंडिडेट डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं और एमएससी कैंडिडेट तो उनके लिए गेट या नेट क्वालिफिकेशन मस्ट है आपका। फॉर पार्ट टाइम देर इज नो गेट और नेट मैंडेटरी, बट देर इज़ रिक्वायरमेंट मिनिमम 1 ईयर टीचिंग और रिसर्च और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्यूरेशन आपका क्या है, तो ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम एंड द टाइम फॉर सबमिशन ऑफ थीसिस आर काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। द पीरियड टू कंप्लीट पीएचडी प्रोग्राम नॉर्मली 2 to 5 ईयर्स, 2 से 5 साल आपका है ड्यूरेशन पीएचडी कंप्लीट करने का। किसके लिए, फुल टाइम कैंडिडेट के लिए, फ्रॉम द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। हाउएवर द कैंडिडेट मे बी गिवन एन एडिशनल टाइम ऑफ 1 ईयर एट द टाइम फॉर सबमिशन ऑफ हिज और thesis without fellowship. The request for such extension may be considered as per the institute PhD rules. If the scholar fails to submit the thesis by the deadline of final extension, his or her registration stands cancelled. मीन्स यदि आप 5 ईयर्स विद इन 5 ईयर्स आप यदि नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो 1 साल का आपका एक्सटेंशन मिल जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, बट उसमें भी आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड हो जाएगा। और पार्ट टाइम के लिए ये 7 ईयर्स। फी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका टोटल जो इंस्टीट्यूट फ़ी है वो है 17,200। ये जनरल ओबीसी और अदर कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी के लिए ट्यूशन फ़ी कैंसिल ये वेब्ड रहता है तो 99,700 उनके लिए है। और सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में आपका 11,600 लगेगा। और इसमें हॉस्टल फ़ी वगैरह इसमें नहीं है मेंशन, आई थिंक नहीं इसमें नहीं है। फिर और क्या चीज़ है यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। फॉर SC/ST का स्कॉलर अंडर FT01 एंड FT02 एज सच द ट्यूशन फी इज एग्जेम्प्टेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ दैट स्कॉलर सेल्फ और फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स डजंट एक्सीड 4.5 लाख पर ईयर। हाँ, यदि SC/ST कैंडिडेट का 4.5 लाख पर ईयर से कम है तो उनका ट्यूशन फी है जो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। और दो स्कॉलर हुज सेल्फ और फैमिली इनकम इज मोर है टू डिपॉजिट सेम फी एज जनरल कैटेगरी। मीन्स जिनका 4.5 लाख से ज़्यादा है उनको पूरा फी जनरल कैटेगरी के बराबर करना पड़ेगा। दिस इज़ इम्प्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस विच MHRD लेटर जो भी है दिया हुआ वो देखना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 3,000 है टू बी डिपॉजिटेड। सेकेंड, एट द टाइम ऑफ सबमिशन वन टाइम फी ऑफ 5,000 है टू बी डिपॉजिटेड। तो इतना डिपॉजिट करना है। ये पार्ट टाइम के लिए है 14,500 और सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में 9,000 है। हॉस्टल फी आपका अलग से है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका लगना है 16,750 और नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड 8,250। एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। लास्ट डेट है 25 जनवरी 2021। 500 आपका एप्लीकेशन फ़ी लगेगा और ये लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना है। और आपको पेमेंट जो करोगे उसका रिसिप्ट भी आपके साथ में रखना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपका ये एक्सेप्टेड नहीं होगा और आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका है विल बी नोटिफाइड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाय ईमेल। मोरओवर द नेम ऑफ शॉर्ट लिस्टेड विल बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट अलॉन्ग विद डिटेल शेड्यूल एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन एंड और इंटरव्यू। ये सारे डॉक्यूमेंट आपका लगना है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पूरा डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, पर बेसिक है आपका वैलिड वोटर ID प्रूफ होना चाहिए। आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके सारे सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट वगैरह होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिर आप जो कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट। फिर गेट नेट क्वालिफिकेशन है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। पार्ट टाइम वाले के लिए NOC आपका एम्प्लॉय कंपनी से बनवाना पड़ेगा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ये बंदा यदि वहाँ काम करे ये PhD करेगा तो। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के देना है। जनरल इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ कि सीट जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अनुसार फॉलो किया जाएगा। और ये भी है कोई TAD आपको अलाउ नहीं होगा। नो TAD विल बी पेबल एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी बोर्डिंग एंड लॉजिंग अरेंजमेंट ऑन दियर ऑन। फिर चेंज ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल भी आपका इंटरटेन नहीं होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो भी है उनको इंटीमेट किया जाएगा ईमेल और मोबाइल के थ्रू। नो सेपरेट कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू विल बी इशूड। कैनवासिंग इन एनी मैनर वुड इंटेल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेचर।
फिर द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू सेट हायर स्टैंडर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। ये इंस्टीट्यूट के ऊपर है कि वो क्या क्या क्राइटेरिया आपका सेट कर सकता है। तो ये पूरा आपका डिटेल था। इंस्टीट्यूट जो है ये भी उसके पास राइट है कि इस जो है वैकेंसी है उसको कैंसिल कर सकता है पीएचडी एप्लीकेशन को विदाउट इन असाइनिंग एनी रीजन, as all dispute are subjected to Gangtok High Court. So that's all about today's video. If you have liked this, then please share also with the friends who has required for this, and please subscribe the channel. Thank you.